Hi friends, welcome back to my channel, and today we are going to discuss about a fundamental and yet incredibly useful topic in HTML. But before jumping onto that, I will give you a riddle. Let's see if we can solve this or not. So I have created a riddle with the help of an AI tool, of course. So let's see if you can solve this. I hold a group but I have no hands. I bring order or let items stand. With bullets or numbers, I make things clear or pair a word with meaning held near. I come in three forms. I repeat this line again. I come in three forms, each with a rule, from 100 steps to a dictionary scroll. What am I? So, if you got this answer, you can comment it down, or I'm giving you this answer in this video only. So, they are list, and today we are going to talk about this topic only, this list. So lists are basically very useful in HTML when we have to organize an information in a structured way, and there are so many informations, and we have to organize that information in a structured way. Then their list comes into the picture. So without any further delay, let's get started. या ओके, सो हम चलते हैं VS कोड पे। एंड अब क्योंकि हम लिस्ट की बात कर रहे थे, वी वर टॉकिंग अबाउट लिस्ट। सो बेसिकली देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ लिस्ट। ओके ओके, सो विजुअल स्टूडियो कोड पे मैं आपको क्यों लाई हूँ, तो मैं आपको ये बता देती हूँ। सो दिस इज़ अ VS कोड एडिटर, जहाँ पे अब हम कोडिंग करेंगे HTML में, CSS में, और आगे JS में भी सीखेंगे। फिलहाल HTML की बात करते हैं, तो इसमें अब हम कोडिंग करेंगे। जिसे नहीं पता है कि विजुअल स्टूडियो कोड कैसे डाउनलोड करते हैं, वो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, एंड मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो भी लेके आऊँगी। सो दिस इज़ द इंटरफेस ऑफ विजुअल स्टूडियो कोड। ये मेरे में पहले से इंस्टॉल्ड है। एंड सो नाउ, अब ये बात रही विजुअल स्टूडियो कोड की, अब टॉपिक पे चलते हैं। तो लेट्स मिनिमाइज इट, एंड हियर इज ओके। सो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट लिस्ट। सो लिस्ट तो अब हमें पता लग गया कि व्हाट आर लिस्ट। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि when we have to organize our information in a structured way, then we use list. Now, there are three kinds of list: ordered list, unordered list, and description list. So, today we are going to talk about these three lists only. So, first of all, let's create our HTML file. In VS Code, we have to create our HTML files. For that, I'll go to File, and then a dialog box, a file menu will appear. Let it gets appear first. It's actually, my laptop is working very slow, so that's okay. Here it is. So create new text file. We'll click on this, create new text file, select a language, and after clicking on select a language, this thing will appear, and here we'll type HTML, and we will write here HTML, and see automatically the symbol the of HTML appear here. So this is the HTML doc. Now we'll press shift and then exclamation mark, and it will generate the boilerplate of HTML. Okay, maybe it's not working right now, or what? Okay, if it's not working, then we have another alternative to get the boilerplate of HTML, which is HTML
colon 5 and yeah, okay. And this is here for the title I will write list. Okay, this is and here file save as. First I'll save it in the desktop, जिससे कि अगर ये बाई चांस ही इतना हैंग हो रहा है तो अगर ये बंद भी हो जाए ना तो हमें अपना हमारा काम मिल जाए। तो डेस्कटॉप में पहले हम सेव कर लेते हैं। एंड मैं आपको भी यही रिकमेंड करूँगी कि आप भी जब भी ये फाइल क्रिएट करो सबसे पहले आप इसको सेव कर लिया करो ऑलरेडी डेस्कटॉप में। तो मैं लिस्ट डॉट HTML के नेम से सेव कर देती हूँ इसे। सेव। ओके, अब यहाँ पे हमने पढ़ा 3 तरह के लिस्ट होते हैं, ऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट एंड डिस्क्रिप्शन लिस्ट। तो सबसे पहले देखते हैं कि ऑर्डर्ड लिस्ट क्या होता है। तो ऑर्डर लिस्ट का जो टैग होता है वो होता है OL। राइट, OL होता है। तो वहाँ यहाँ पे हम OL लिखेंगे। जस्ट अ सेकेंड, एक्चुअली मैं माइक गिर रहा है बार बार तो इसलिए थोड़ा सा। ओके, नाउ इट्स गुड। तो हियर वी विल राइट OL मींस OL का जो शॉर्ट फॉर्म होता है वो पहले ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट को हम कहते हैं OL। ठीक है, OL इसका टैग होता है, शॉर्ट फॉर्म कुछ इस तरीके से होता है, स्मॉल में या। तो देखो OL होता है टैग, ये होता है ऑर्डर लिस्ट का। तो ऑर्डर लिस्ट से हमें नेम से ही समझ में आ रहा है कि ये लिस्ट को ऑर्डर वाइज, सीक्वेंस वाइज क्रिएट करते हैं। जैसे कि जहाँ पे ऑर्डर मैटर करता है, राइट। जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल हमें अपनी वेबसाइट पे रेसिपी लिस्ट करनी है, ऑलराइट, किसी भी चीज़ की रेसिपी हो गई, फॉर एग्जांपल रोटी बनाने की रेसिपी हो गई, राइट। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, हम अगर हम ऐसे लिख दें बिना ही ऑर्डर लिस्ट के, मैं यहाँ पे लिखती हूँ, हम बिना ऑर्डर लिस्ट के लिख दें कि आटा लो, ठीक है, फिर रोटी बेलो, आटा गूंथो, पानी डालो, सो ऑल दीज थिंग्स। तो अब आटा लो, रोटी बेलो, आटा गूंथो, पानी डालो, ऑल दीज थिंग्स, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कुछ समझ आ रहा है ना। मतलब ये तो अनऑर्डर्ड है, मतलब आटा लो फिर रोटी बेलो। ऑब्वियसली पहले आटा लेंगे तो उसमें पानी डालेंगे, उसके बाद उसे गूंथेंगे, उसके बाद रोटी बेलेंगे, राइट। तो ऑर्डर यहाँ पे मैटर करता है। तो जहाँ पे ये ऑर्डर मैटर करता है वहीं पे हम ऑर्डर्ड लिस्ट यूज करते हैं, ठीक है। अब इसको मुझे अगर लिखना हो ऑर्डर वाइज तो मैं क्या करूँगी, मैं सबसे पहले यहाँ पे लिखूंगी OL। ओके, ये सजेशन बॉक्स इसमें भी काम नहीं कर रहा है, पता नहीं। एनीवेज LI कितने हैं, 1 2 3 4, 4 है ना, तो मैं 4 LI इंटू 4, ये 4 लिस्ट यहाँ पे क्रिएट हो गई। LI मतलब होता है लिस्ट आइटम। यहाँ पे मैं लिख देती, लिस्ट आइटम्स को लिस्ट करने के लिए LI टैग का यूज होता है, ऑलराइट। और ऑर्डर लिस्ट जब हमें लिखना हो, जब हम कोई, ये लिस्ट आइटम्स को लिस्ट करने के लिए, तो पहले तो हम HTML को ये बताएंगे कि जो हम जो हम आइटम्स लिस्ट करने जा रहे हैं वो हम कैसे करेंगे, ऑर्डर करेंगे, अनऑर्डर्ड करेंगे या डिस्क्रिप्शन वे में करेंगे। तो हमने कहा कि भाई हम पहले ऑर्डर लिस्ट में करेंगे, पहले हम HTML को बताएंगे कि हमें पहले ऑर्डर लिस्ट में आइटम्स को लिस्ट करना है।
तो ठीक है, तो हमने ओएल टैग दे दिया इसको। ठीक, अब उसके बाद क्या होता है कि अब हमें ऑर्डर लिस्ट के अंदर आइटम्स को लिस्ट करना है। तो ये लिस्ट आइटम्स को लिस्ट करने के लिए एल आई टैग का यूज होता है। ये लिस्ट आइटम्स, एल आई इसका शॉर्ट फॉर्म है लिस्ट आइटम्स का। सो आई होप आई एम क्लियर। मैं इसको यहाँ पे ओएल कर देती हूँ बस। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले हम क्या है, आटा लो, फिर क्या है, आटा गूंदो, नहीं पानी डालो, रहेगा पानी डालो, उसके बाद आटा गूंथो, गूंथो, और फिर रोटी बेलो, रोटी बेलो। यहाँ पे ऑर्डर जहाँ पे ऑर्डर मैटर करता है, जिस लिस्ट में इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करने के लिए, कि मतलब पहले ये होगा, फिर उसके बाद ये होगा, उसके बाद ये होगा, तो उस टाइम पे वी यूज ऑर्डर्ड लिस्ट, जिसको हम ओएल टैग की हेल्प से यूज कर सकते हैं HTML में। ऑलराइट, तो पहले अब एक बार हम फिर से वापस रिवाइज कर लेते हैं हमने क्या क्या। हमें पता है कि लिस्ट आइटम्स को लिस्ट करने के लिए हमें क्या एल आई टैग का यूज होता है। हमें ये भी पता है कि ऑर्डर लिस्ट को लिस्ट करने के लिए ओएल टैग का यूज होता है। ठीक है, तो अब हमने ओएल टैग क्या, ओएल टैग ऐसे लिखते हैं, ये क्या बताता है, ये HTML, ये ब्राउजर को बताता है कि ये वाली जो लिस्ट होगी ये ऑर्डर्ड लिस्ट होगी। ठीक है, और ऑर्डर लिस्ट में क्या क्या लिस्ट आइटम्स, अब हम क्या क्या आइटम्स हम लिस्ट करने वाले हैं, तो हम ये आइटम्स लिस्ट करने वाले हैं, आटा लो, पानी डालो, ये सब। तो अब उसके लिए हम एल आई टैग का यूज करेंगे। ठीक है, लिस्ट आइटम्स को लिस्ट करने के लिए हम एल आई टैग का यूज करेंगे। इसको मैंने सेव कर दिया है। अब मैं मिनिमाइज करूंगी सब कुछ, ये रहा मेरा लिस्ट आइटम, इस पर क्लिक करूंगी, ओपन विद क्रोम करूंगी, आप इस पर डबल क्लिक करके भी कर सकते हो। मैं ये तरीका मैं ज़्यादा यूज़ करती हूँ, तो इसीलिए वो आदत है मुझे इसकी। ओके, गूगल क्रोम। तो अब हम देखते हैं कि डिस्प्ले कैसा हो रहा है वेब पेज पे। तो ओपन हो रहा है क्या, लिस्ट आइटम्स को लिस्ट करने के लिए एल आई टैग का यूज होता है, ऑर्डर लिस्ट को ओएल टैग से। तो देखो, हमने पहले जो हमने ओएल टैग लिया था उसने ब्राउजर को बताया कि ऑर्डर लिस्ट है। तो फिर उसके बाद एल आई टैग क्या कर रहा है, एल आई टैग ये बता रहा है कि ये लिस्ट आइटम्स है इस वेब पेज पे। तो फिर ब्राउजर कहता है ठीक है, तो मैं इसको ऑर्डर लिस्ट में इसको लिस्ट कर देता हूँ ऑर्डर्ड वे में। जैसे हमने कहा था इसने वैसे ही लिस्ट कर दी, पहले आटा लो तो पहले आटा लो, फिर पानी डालो तो पानी डालो। ठीक है, ऐसे करके। अब यहाँ पे, अब मान लो कि यहाँ पे तो 1 2 3 4 है। ठीक है, अब अगर मुझे ये करना हो, मैं इसको हटा देती हूँ। ऑलराइट, सेव कर देती हूँ। अब अगर यहाँ पे तो ये है, अब अगर मैं इसको मैं कॉपी करूँ, ऑल्ट शिफ्ट डाउन, ऑल्ट शिफ्ट डाउन से इसे हम कॉपी कर सकते हैं एज इट इज। अब अगर मैं यहाँ पे मुझे चाहिए कि ये 1 2 3 4 में ना हो। ठीक है, ब्राउजर में क्या है कि ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट अगर आप कुछ नहीं डालोगे, है ना, तो ये 1 2 3 4 में ही लिस्ट करेगा। बट अगर आप ये चाहते हो कि मैं ये चाहती हूँ कि ये 1 2 3 4 में ना हो, ये मुझे ABCD में मिले, ठीक है, कि ABCD वो वाले पॉइंट्स हो, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे मैं ओएल टाइप लिख दूंगी, ओएल टाइप ए। इसको सेव करेंगे, देखते हैं होता है कि नहीं, वो करता है कि नहीं। ये रहा, इसको हाँ सी ABCD, इसमें ABCD में ये वर्क कर गया। ऑलराइट, और वैसे ही अगर हम रोमन नंबर वाले जो 1 2 3 है उसमें अगर हम लिस्ट करना चाहें, तो देखते हैं कि होता है या नहीं। तो ऑल्ट शिफ्ट डाउन एंड हमें स्मॉल आई लिख दो बस। ठीक है, सिर्फ स्मॉल आई, देखते हैं वो करता है। यप, सी 1 2 3 4, तो ये हो गया ऑर्डर्ड लिस्ट।
ठीक है, जिसके 3 टाइप्स होता है। एक तो बाय डिफॉल्ट रहेगा, ठीक है, ये, और एक होगा ये ए। अगर आपको ABCD में लिखना है तो आपको लिखना पड़ेगा टाइप इज इक्वल टू ए, में ए टाइप में चाहिए। अगर आपको रोमन नंबर्स में चाहिए तो उसके लिए आपको स्मॉल आई टाइप स्मॉल इज इक्वल टू स्मॉल आई, उसके आगे लिखना पड़ेगा। अब मैं इसी को एक बार और कॉपी करती हूँ। सी, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 1 2 3 4 से स्टार्ट हो रहा है। मैं चाहती हूँ कि ये मतलब 1 2 3 4 से ना हो के ये मुझे मिले 11 12 13 14, ऐसे चाहती हूँ 11 से स्टार्ट। तो मैं लिखूंगी टाइप, आई गेस OL स्टार्ट लिखेंगे यहाँ पे। वेट, थोड़ा सा कंफ्यूज हो रही हूँ, लेट्स सी इफ इट वर्क्स आउट। हाँ, 11 12 13 14। सी, तो ये होता है ऑर्डर लिस्ट। जहाँ पे सीक्वेंस मैटर करता है हम वहाँ पे ऑर्डर लिस्ट को का यूज करते हैं। सो नाउ अब हम चलते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट पे। सो अनऑर्डर्ड लिस्ट नाउ मतलब सिंपल हो गया होगा, अगर अंदाजा लगा सकते हैं कि ऑर्डर्ड लिस्ट का शॉर्ट फॉर्म या टैग OL है, तो अनऑर्डर्ड लिस्ट का क्या होगा? ऑफ कोर्स अनऑर्डर्ड लिस्ट का होगा UL। अनऑर्डर्ड लिस्ट को लिस्ट अनऑर्डर्ड लिस्ट वाले जो आइटम्स को लिस्ट करने के लिए हम UL टैग का यूज करते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल ये कब यूज होता है? ऑर्डर्ड लिस्ट तो हमें समझ आ गया, जहाँ पे सीक्वेंस मैटर करता है वहां पे ऑर्डर्ड लिस्ट यूज होता है। अनऑर्डर्ड लिस्ट जस्ट अपोजिट, जहाँ पे सीक्वेंस मैटर नहीं करता वहां पे अनऑर्डर्ड लिस्ट यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपको बताना हो कि आपकी हॉबीज क्या क्या है, तो वहाँ पे ऑर्डर तो आएगा नहीं, आपका जिस टाइम जो मन करता है वो करते हो अपने हॉबी में, है ना। मान लो कभी म्यूजिक सुनने का मन कर दिया तो यू लिसन म्यूजिक, आपको डांस करने का मन कर दिया तो यू डांस, है ना, आपको रीडिंग करने का मन कर दिया तो यू रीड बुक्स, राइट। तो देयर इज नॉट एनी स्पेसिफिक सीक्वेंस, है ना, तो यहाँ पे सीक्वेंस मैटर ही नहीं करता। तो वो इंफॉर्मेशन जहाँ पे सीक्वेंस मैटर नहीं करता, सिर्फ इंफॉर्मेशन मैटर करती है, दैट्स इट, वहाँ पे हम ऑन अनऑर्डर्ड लिस्ट यूज करते हैं। ऑलराइट, तो इसके लिए भी हम चलते हैं, फिर टाइप करते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पे मैं टाइप करूंगी UL। आई डोंट नो व्हाई द सजेशंस आर नॉट वर्किंग। पता है सजेशंस इसमें बहुत तो यहाँ पे क्या क्या करें, हॉबीज ही करते हैं, चलो जिसका एग्जाम्पल लिया वही करते हैं। तो मान लो मैंने यहाँ पे इफ यू वांट 6 you will list 6 items, ऑलराइट। तो लिसनिंग म्यूजिक एंड रीडिंग बुक्स, ठीक है, ये सारी हॉबीज है, ठीक है। प्लेइंग बैडमिंटन, ऑलराइट, एंड और क्या क्या हो सकता है, डांसिंग, और क्या कुकिंग, और क्या हो सकता है, वॉचिंग मूवीज। ऑलराइट, अब हम इसको सेव करते हैं और देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। तो लेट्स रीलोड दिस साइट। सी, दिस इज एन ऑर्डर्ड लिस्ट। इसने क्या किया, बुलेट्स में आंसर दिया। यहाँ पे भाई 1 2 3 4 तो नहीं करेगा, and we have to list the items. So obviously it will show in the form of list. So for that, जब इसने UL टैग ने बताया कि ब्राउजर को कि ये वाले जो आइटम्स है ये अनऑर्डर्ड लिस्ट है, मतलब इसमें सीक्वेंस मैटर नहीं करता, तो यहाँ पे ये नंबर नहीं डालेगा, यहाँ पे बुलेट्स डाल देगा बाय डिफॉल्ट। अगेन बाय डिफॉल्ट। अब if you want to change these bullets, all right, what you will do, you will type is equal to square, control S, reload it। see, ये स्क्वायर में आ गया। सिमिलरली
if you will type here circle, it will give you in circle. See, so these are the kinds of bullets you can use here just by writing type and what kind of bullets you want. Square, circle and by default कैसे है ये हमें filled circles वाले bullets देता है. So I hope I am clear. OL लिस्ट आपको समझ में आ गई होगी. अनऑर्डर्ड लिस्ट आपको समझ में आ गई. तो ऑर्डर्ड जहाँ पे सीक्वेंस मैटर करता है, अनऑर्डर्ड जहाँ पे सीक्वेंस मैटर नहीं करता. All right, so I guess की recording has been started. Okay. So we were talking about description list, right? I'm sorry, मुझे बीच में रुकना पड़ा. Actually मैं घर पे ही वीडियो बनाती हूँ, तो कोई आ गया था इस वजह से. So we were talking about description list. See, ऑर्डर्ड हमने पढ़ लिया. जहाँ पे ऑर्डर मैटर करता है, सीक्वेंस मैटर करता है, वहाँ पे हम ऑर्डर्ड लिस्ट यूज करते हैं. अनऑर्डर्ड लिस्ट जहाँ पे ऑर्डर मैटर नहीं करता, वहाँ बट आइटम्स लिस्ट करने होते हैं, तो वहाँ पे हम अनऑर्डर्ड लिस्ट का यूज करते हैं. थर्ड टाइप होता है डिस्क्रिप्शन लिस्ट. डिस्क्रिप्शन लिस्ट तब होता है जब हमें कोई आइटम लिस्ट करना हो, साथ में उसका डिस्क्रिप्शन भी उसमें देना हो. या सबसे अच्छा एग्जाम्पल हम लेंगे इसका ग्लॉसरी, जो हम बुक्स में देखते हैं, राइट, टेक्स्ट बुक्स में देखते हैं. ग्लॉसरी या वर्ड मीनिंग्स कह लो, तो वो जो वर्ड मीनिंग्स होते हैं वो पहले वर्ड लिखा होता है एंड उसके नीचे उसका मीनिंग, देन वर्ड, देन मीनिंग. तो वो जो लिस्टेड होते हैं वर्ड्स, वो कैसे हम उसको वेब पेज में लिस्ट कर सकते हैं? विद द यूज ऑफ डिस्क्रिप्शन लिस्ट. जहां पे हमें लिस्टेड आइटम का डिस्क्रिप्शन देना हो, वहां पे हम डिस्क्रिप्शन लिस्ट का यूज करते हैं. तो डिस्क्रिप्शन लिस्ट का टैग, अब जैसे ऑर्डर्ड लिस्ट का OL, अनऑर्डर्ड लिस्ट का UL, तो वैसे डिस्क्रिप्शन लिस्ट का टैग क्या होता है? DL होता है. इसमें तीन चीजें और आती हैं. एक होता है DD एंड दूसरा होता है DT. या DD एंड DT. DD होता है, DD का मतलब हम क्या अंदाजा लगा सकते हैं? डिस्क्रिप्शन डिटेल्स. या ओके, तो ये इसका टैग भी है एक्चुअली इसमें, तो इसलिए इसने टैग ले लिया. बट या तो DD का मतलब डिस्क्रिप्शन डिटेल्स एंड DT का मतलब होता है डिस्क्रिप्शन टर्म. डिस्क्रिप्शन टर्म. अरे यार क्या, हाँ ओके. सी, DD एंड डिस्क्रिप्शन लिस्ट का मतलब हमें पता है कि जब हमें डिस्क्रिप्शन देना हो किसी भी आइटम का, तब हम डिस्क्रिप्शन लिस्ट का यूज करते हैं, जिसका टैग होता है DL. उसमें दो चीजें आती है. DT डिस्क्रिप्शन टर्म, यानी कि जो लिस्टेड आइटम है, मतलब जिसका हमें डिस्क्रिप्शन देना है, ठीक है, जिस वर्ड का हमको डिस्क्रिप्शन देना है, उसको हम कहते हैं DT यानी डिस्क्रिप्शन टर्म. और जो डिस्क्रिप्शन हमें लिखना है उसको हम कहते हैं डिस्क्रिप्शन डिटेल्स. लेट मी क्लियर दिस विद एन एग्जाम्पल. तो हम यहाँ पे लेंगे DL. ऑल राइट, और हम यहाँ पे सबसे पहले लेते हैं DT. ओके, तो इसने ये दे दिया है. लेट, चलो इसको यूज कर देते. देखो इसमें हुआ क्या है. DL, या फिर ना मैं खुद ही बना लेती हूँ, एक मिनट. DT, जिससे कि आपको समझा भी सकूं. DT यानी डिस्क्रिप्शन टर्म, जो हमें जैसे कि हम OL ऊपर हम जैसे अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाई है ना, तो सबसे पहले हम अनऑर्डर्ड लिस्ट का टैग ओपन करते हैं. उसके बाद जो हमें आइटम लिस्ट करना होता है उसके लिए हम LI टैग यूज करते हैं. सिमिलरली, क्योंकि हमें डिस्क्रिप्शन लिस्ट यहाँ पे लिखनी है, ना अनऑर्डर्ड लिखनी है ना ऑर्डर्ड लिखनी है, हमें डिस्क्रिप्शन लिस्ट लिखनी है, तो इसलिए हमने यहाँ पे DL यूज किया है. और DL के अंदर जैसे यहाँ पे आइटम को लिस्ट करने के लिए LI टैग यूज होता है, वैसे यहाँ पे आइटम को लिस्ट करने के लिए DT टैग यूज होता है, यानी कि डिस्क्रिप्शन टर्म. ऑलराइट, क्योंकि हमें डिस्क्रिप्शन लिस्ट में डिस्क्रिप्शन भी देना होता है.
ऑलराइट, सिर्फ लिस्ट नहीं करना होता। सिर्फ लिस्ट करना होता तो यहाँ पे भी li टैग यूज होता, बट यहाँ पे हमें डिटेल्स भी देनी है उस पर्टिकुलर वर्ड की। तो जिस पर्टिकुलर वर्ड की हमें डिस्क्रिप्शन देना है उसको हम dt में लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ भी लिख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने कुछ भी वर्ड लिख लिया, HTML लिख लिया, ठीक है, एंड अब इसकी डिटेल्स मुझे डालनी है, ये मुझे इसने दे दिया। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ऑलराइट। फिर मैं यहाँ पे dt करूंगी, ओके, इसने मुझे अपने आप दे दिया, एंड dd cascading style sheet। okay, so this makes the code easier। let's say इसमें ये AI वाला फीचर आया है। anyways, ऑलराइट, यहाँ पे देखो HTML और फिर उसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन डिटेल्स, फिर डिस्क्रिप्शन टर्म क्या है, CSS, फिर उसकी जो डिटेल दी हुई है वो DD में लिखी हुई है। ऑलराइट, अब यहाँ पे अब अगर मैं लिखूं फिर से जावा स्क्रिप्ट, ऑलराइट, तो इट्स अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज्ड ऑन द वेब। इसकी डिटेल्स, इसको सेव करते हैं। तो वेट, हाँ सेव हो गया। नाउ लेट्स गेट बैक टू द वेब ब्राउजर। ये रहा लिस्ट, इसको रीलोड करेंगे। एक्चुअली थोड़ा टाइम ले रहा है, तो डिस्क्रिप्शन लिस्ट क्या करेगा इसको, ये तो जो मैंने लिखा हुआ है वो आ गया है, ये रहा सी, ये dt यानी डिस्क्रिप्शन टर्म, और ये dd डिस्क्रिप्शन डिटेल्स, देन अगेन ये dt डिस्क्रिप्शन टर्म, एंड देन dd डिस्क्रिप्शन डिटेल्स, देन dt यानी डिस्क्रिप्शन टर्म, एंड देन dd description details। So I hope you got the point, guys। So this is the overall list tag, जो 3 तरीके के होते हैं, ordered list, unordered list and description list। So let's sum up all these things and आप notes prepare करते रहना। unordered list जहाँ पे sequence matter करता है, ठीक है, तो ordered list जहाँ पे sequence matter करता है, और ordered list को बनाने के लिए सबसे पहले हम OL टैग ओपन करते हैं, उसके बाद उसके अंदर LI टैग्स, जितने में आइटम लिस्ट करना होता है उतना LI टैग यूज करते हैं, उसके बीच में हम अपने लिस्टेड आइटम्स रखते हैं, एंड देन OL टैग क्लोज करते हैं। ये OL टैग के अलग अलग टाइप्स हैं, जैसे कि स्टार्ट अगर 11 से करना हो तो 11, 12, 13, 14 आएगा, टाइप A से करना हो तो ABCD आ जाएगा, ठीक है, टाइप रोमन नंबर वाले नंबर लिखने हैं तो हमें स्मॉल आई लिखना है, उसके बाद ही अपने आप गेस कर लेता है ब्राउजर और उस हिसाब से लिस्ट को प्रेजेंट कर देता है। सिमिलरली फॉर अनऑर्डर्ड लिस्ट, इसमें बस सीक्वेंस मैटर नहीं करता, तो ऑब्वियसली नंबर नहीं आएगा, बट अगर हमें अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाना है तो हम यूएल टैग यूज करेंगे, फिर जो हमें आइटम लिस्ट कर रहे हैं उसके लिए एल आई टैग का यूज कर लेंगे, एंड देन यूएल क्लोज। तो इसमें बाय डिफॉल्ट जो होगा वो फिल्ड वाले सर्कल्स आएंगे इसमें। देन यूएल टाइप स्क्वायर, तो ये स्क्वायर वाले बुलेट्स आ जाएंगे, एंड बाकी जब जो प्रोसीजर है वो सेम रहेगा। देन सर्कल, अगर हमें सर्कल वाले बुलेट्स चाहिए तो बस टाइप सर्कल लिख देना है, बाकी जो सेम प्रोसीजर है वो सेम रहेगा। नाउ कमिंग बैक टू द डिस्क्रिप्शन लिस्ट, तो ये होता है डीएल, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है, और इस डिस्क्रिप्शन लिस्ट के अंदर 2 चीजें हम लिखते हैं, एक तो dt लिखते हैं और एक dd लिखते हैं। dt यानी इसकी डिस्क्रिप्शन टर्म, एंड dd मतलब कि डिस्क्रिप्शन डिटेल्स। डिस्क्रिप्शन टर्म यानी कि जो हमें आइटम जो वर्ड या जो आइटम जो हमें लिस्ट करना है, तो उसको हम डिस्क्रिप्शन टर्म dt की हेल्प से लिस्ट करते हैं, जिससे कि हम dd का यूज करके उसकी डिटेल्स भी लिख सके। तो यहाँ पे भी डिस्क्रिप्शन टर्म यानी कि CSS, एंड उसकी डिटेल्स कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। देन dt यानी जावास्क्रिप्ट इसमें लिखा है हमने,
एंड इस जावास्क्रिप्ट की डिटेल्स हमने लिखी है dd में. सो आई होप इट्स क्लियर एंड सेव करते हैं. या तो ये है गाइस. तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे. एंड अगर आपको कोई भी डाउट होगा सो प्लीज आस्क इन द कमेंट्स. एंड इफ यू वांट कि हम VS कोड कैसे इंस्टॉल करते हैं उस पर भी एक सेपरेट वीडियो लाई जाए, देन ऑल्सो डू कमेंट्स and subscribe us for more such videos. And bye bye.